Good morning, students. Welcome to Bharat English High School and Junior College online lectures. Myself, Alima Zaidi. So, now today we are going to start our third chapter, Advanced JavaScripting. Before starting this chapter, I let you know that we will complete our first chapter and second chapter. The first chapter is advanced web designing and the second chapter is SEO. Okay, with the help of second chapter we will learn how to search, how to publish or how to advertise our websites, okay, our videos, our pages. And with the help of chapter 1, that is advanced web designing, we will learn how to do HTML programming and how to do CSS and lots of things. Okay, with the help of HTML we will create our own websites, okay, and that websites are very attractive and looking very beautiful. Okay, with the help of HTML and HTML5 we will learn lots of things like how we'll create web page, how we'll change look of our web page, and how we'll change the font and how we'll change the color, how we'll add the image and how we'll add the background image as well, how to do the changes of background color of our web page. Lots of things we will learn in in last chapter. Okay, so as everyone know कि what is HTML. Okay, HTML is a programming language. Okay, हम with the help of HTML we will create website. Okay, like that we have one more language that is called Java. Okay, with the help of Java we can create a lots of apps. As you know कि आज हम बहुत सारे apps यूज़ करते, right? We will using mobile. Then in mobile we have lots of apps like WhatsApp, Instagram and email, uh, cameras and even Zoom. आजकल हमारे जो lectures होते हैं mostly that was on Zoom. Okay, so all these things are happen in where all these things are happen in a particular app. Okay, with the help of that app we will do our lots of things. Even अभी ऑनलाइन के भी बहुत सारे ऐप आए हुए हैं लाइक स्टडीज़ के सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, उसमें लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. देन वी विल लर्न फ्रॉम दैट. with the help of that app we will learn at home. Okay, so with the help of JavaScript and with the help of HTML we will learn how to create our websites. Okay, and with the help of JavaScript we will learn how to create any app or even a website. Okay, so let's learn advanced JavaScript. Okay, so first of all is introduction. There is variety of scripting language used to develop डायनेमिक वेबसाइट्स. बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं, कोई भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए. जावा स्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. अन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या है? ये एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लाइक हमारा HTML था एंड जावा है, C# है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं. ओके, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. नाउ लेट्स सी इसके फीचर्स क्या हैं. JavaScript is a lightweight scripting language because it does not support all features of object-oriented programming language. Okay, now as we know, HTML is a programming language, JavaScript is a programming language, as एक और होता है उसे कहते हैं OOPS. OOPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, एज वी कैन से कि ये जो OOPS लैंग्वेज है ये पहले बहुत यूज़ होते थे, बट नाउ डेज मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं एंड्रॉयड एंड जावा, ये PHP प्रीफर करते हैं. बट बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी OOP यानी कि OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी
प्रिफर करती है. ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. वो लाइट वेट है बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बिकॉज वो लाइट वेट क्यों है? क्योंकि उसके बहुत सारे फीचर्स जो ओप्स में अवेलेबल होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है. दैट वाई इट कॉल अ लाइट वेट प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, नाउ नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. अगर हमें जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करना है तो उसमें हमें अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड करने के लिए. सिंपली वी विल राइट इन योर नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस. with the help of notepad and notepad plus plus we will learn our we will run our javascript language programs. Okay, javascript is object oriented programming language. javascript एक टाइप का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज़ सपोर्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और ये किसको सपोर्ट करता है? इवेंट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये उसको सपोर्ट करता है. अंडरस्टूड. Now next is JavaScript help the browser to perform input validation without wasting the user's time by the web server access. Now अभी ये क्या करता है? ब्राउज़र को हेल्प करता है क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए इनपुट वैलिडेशन. इनपुट वैलिडेशन क्या होता है? When I am typing from my keyboard and I get the output on my display, this is called input. यानी कि जो मैं टाइप कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई कीबोर्ड इज़ कॉल्ड इनपुट. अंडरस्टूड. तो एट द टाइम वैलिडेशन कब होता है? नाउ अगर आप जा रहे हो एक वेबसाइट पर या एक ऐप का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट का. ओके, व्हेन आई विल गो ऑन फ्लिपकार्ट आफ्टर कलेक्टिंग माई थिंग्स जो मैंने ख़रीदा है. ओके, देन आई एम गोइंग फॉर पेमेंट. अगर मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो मुझे लॉगिन करने बोलेगा. अदरवाइज़ रजिस्ट्रेशन, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एंड मैं लॉगिन करने जा रही हूँ, मैं डालूँगी आलिमा जैदी एंड मैं पासवर्ड डालूँगी zedi@123. ओके, तो ये अपने सर्वर में जाके चेक करेगा कि ये नाम के मतलब कस्टमर उनके पास अवेलेबल है या नहीं. ओके, देन दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन. चेक करना. ओके, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? वैलिडेशन. So this phase is called validation where the owner is checking कि this user या this customer is available or not. If I am not available then he told me to register yourself first. Okay, तो मैं क्या करूँगी? I am going for registration form and I will fill all the information जो मुझे दी गई है फिल करने के लिए. Okay, so this is called validation. सो वो इजीली हमें बिना यूज़र का टाइम वेस्ट किए वो फटाफट हमें रजिस्ट्रेशन के वे में लेके जाता है एंड विद इन अ मिनट आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ इन फ्लिपकार्ट एंड आई विल प्रोसीड माई पेमेंट. इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली. एंड वन मोर थिंग, समटाइम्स कुछ जो ऐप होते हैं या साइट्स होते हैं उसमें बग होते हैं. ओके, बग का मतलब क्या होता है? एरर. एरर का मतलब क्या होता है? गलती. ओके, सो कुछ वेबसाइट्स में हो जाती है गलतियाँ या कुछ ऐप्स में ये गलतियाँ हो जाती हैं कि डेट एंड टाइम करेक्ट नहीं होता है. ओके, वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ आवर विंडोज़. ओके, विंडोज़ में समटाइम ऐसा होता है कि हमारे डेट एंड टाइम चेंज हो जाते हैं. ओके, बट ऐसा होना नहीं चाहिए. बट सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे डेट एंड टाइम चेंज हो जाए तो दिस इज़ कॉल्ड. सो इन जावास्क्रिप्ट दिस इज़ वेरी इफेक्टिवली एंड मतलब कैन बी हैंडल नाइसली. ओके, एंड वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन. अभी के मोबाइल फ़ोन में तो ऐसा नहीं होता, बट जो पहले के मोबाइल फ़ोन थे उसमें कैसा होता था कि अगर मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन किया है तो they will ask me about date and time. So on that time I have to make adjust or change the date and time as per the date and time. अदरवाइज़ अगर मैंने नहीं किया है तो वो मुझे आफ्टर माई फ़ोन वॉज स्विचिंग ऑन तो क्या होगा कि मुझे वही एक रॉन्ग डेट एंड टाइम शो करेगा. ओके, सो
इन जावा स्क्रिप्ट इसने बहुत ही नाइसली तरीके से हैंडल किया हुआ है. नेक्स्ट इज अन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट इज एबिलिटी टू क्रिएट न्यू फंक्शन विद इन स्क्रिप्ट. एंड इसके अंदर एक और चीज़ है, वो क्या है, इसके अंदर एक ये एबिलिटी है कि वो नए फंक्शंस को क्रिएट करता है एक ही स्क्रिप्ट के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज डिक्लेयर द फंक्शन की इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग फंक्शन कीवर्ड. ओके, ये डिक्लेयर करता है फंक्शन की को जावास्क्रिप्ट में किसका यूज़ करते, किसका यूज़ करके, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर that can run on only hardware platform like PC and Mac etc. or software platform like Windows, Linux, Mac OS etc. is called platform independent. Okay, platform independent क्या होता है, जिससे हम इंडिपेंडेंट लाइक अभी आप भारत के स्टूडेंट हैं तो यू आर यूज टू विथ अवर भारत एनवायरमेंट. ओके, एंड यू कैन से कि आई एम इन प्लेटफॉर्म, मतलब भारत, आई एम बिलोंग्स टू भारत प्लेटफॉर्म. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड, जिससे हम यूज टू हो जाते हैं. ओके, तो सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ओनली, वो सॉफ्टवेयर जो सिर्फ कहाँ पर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे यूज़ होते हैं. जैसे हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जो मशीन्स को हम खुद से रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. ओके, लाइक हमारे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्प्ले, ऑल दिस थिंग्स आर हार्डवेयर. और जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर का मतलब हमारा जो विंडोज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 13 है, विंडोज़ 10 है, वो. एंड लिनक्स एक और होता है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम कहते हैं लिनक्स. वो विंडोज़ से बहुत ही अलग होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड मैक OS एक्सेट्रा इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म. ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इन लोगों का एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ ये विंडोज़ का है एंड ये लिनक्स का है. ओके, सो जावा स्क्रिप्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट भी जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. ड्यू टू सम फीचर्स जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. उसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसके थ्रू वो जाना जाता है, क्या जाता है, यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, नाउ लेट्स सी, देयर आर two type of scripting language. One is server side scripting language and second is client side scripting language. Okay, now tell me what is client and what is server. As I told you कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है. सर्वर के पास सारी अथॉरिटी होती है टू हैंडल क्लाइंट, राइट. एंड विदाउट सर्वर क्लाइंट कांट डू एनीथिंग. व्हेन सर्वर्स गिव परमिशन then client do their work, otherwise they will not. Okay, so if the servers goes down, clients are also goes down, but if client goes down, server will not. Understood? Now let's see what is client side scripting. In this type, the script reside on client computer, that is server, and that can run on client. इसमें क्या होता है, ये क्लाइंट साइड है, राइट. तो इसमें क्या होता है, ये क्लाइंट मशीन में रन होता है. इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन क्लाइंट कंप्यूटर. क्लाइंट का मतलब क्या हुआ कि ये क्लाइंट मशीन में रन हो रहा है, राइट. तो एंड दैट कैन रन ऑन क्लाइंट कंप्यूटर, ये कहाँ रन हो रहा है, क्लाइंट के कंप्यूटर में. बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आर प्लेस्ड इनसाइड द HTML डॉक्यूमेंट. मोस्टली ये कहाँ होता है, HTML डॉक्यूमेंट में होता है. नाउ नेक्स्ट इज सर्वर साइड. इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन वेब सर्वर. इसमें जो हमारा स्क्रिप्ट रहता है वो किसका होता है, वेब सर्वर का होता है. टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट इट मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय क्लाइंट साइड, देन इट एग्जीक्यूटेड ऑन वेब सर्वर. अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा जो क्लाइंट साइड रहता है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए. उसके बाद ही हम इसे कहाँ रन करते हैं, वेब सर्वर पर वी विल रन दिस. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. Okay, so let's learn what is client side and what is server side scripting. So now here client side, server side scripting is used at a backend where source code is not visible or hidden
at client. ओके, नाउ इन क्लाइंट साइड क्या होता है, जो हमारे जो कोड्स रहते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं हर किसी को. ओके, दैट सर्वर इज ओनली कैन रीड, सिर्फ सर्वर ही उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है. एंड क्लाइंट साइड में, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड एट द फ्रंटेड which users see from the browsers. एंड क्लाइंट साइड कैसे होता है कि वो हम सबको विजिबल होता है. व्हेन द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज प्रोसेस्ड इट कम्युनिकेट्स टू द सर्वर. एंड जब सर्वर स्क्रिप्टिंग प्रोसीड किया जाता है तो वो किससे कम्युनिकेट करता है, सर्वर से. एंड क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग डज नॉट नीड एनी सर्वर इंटरेक्शन. नेक्स्ट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज PHP, ASP.NET, Ruby, Cold Function, and PVT, Private, and Horn, C Sharp, etc. सर्वर साइड क्या यूज़ करता है, PHP, ASP.NET, Ruby, and some of more example. And client side क्या यूज़ करता है, scripting language, involved language such as HTML5, JavaScript, etc. Now server side scripting is useful in customizing the web pages. ये कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली अपने वेब पेजेस को कस्टमाइज़ करने के लिए सर्वर साइड यूज़ होता है. एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आर यूज फॉर वैलिडेशन पर्पस. और क्लाइंट साइड क्यों यूज़ होता है, वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है. नाउ आई लाइक टू टेल यू वन थिंग, आई मेड सम मिस्टेक्स लाइक ऊपर के जो ये दिए हुए हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड जावा साइड स्क्रिप्टिंग, स्वैप बोथ द नेम. This is client and this is server. Okay, actually I made a mistake. So this is the difference between client side scripting and server side scripting. Understood? So remember one thing, all these programming languages are very easy to understand. Okay, and they are very interesting. When we are going on this programming language, we are totally on it. Okay, so this is very interesting and very useful. अगर आप सीख गए तो वेरी नाइस. बट इसमें अभी क्या है, अभी हमने एक भी कोड नहीं देखा है. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कोड्स ऑल्सो. दिस इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग लाइक HTML. Okay, so thanks for listening and thank you so much. Take care everyone. Thank you so much.